Good morning, students. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. So, students, today we are going to discuss about chapter number 4, Unit 3. This is for 7th class, English Furry. The name of the unit is Courage and Heroism. And the name of the chapter is for India's Maritime Minders. So this is for 7th class, and as for the publication of English Furry. So let's begin. So if anyone is newly watching this video, so please subscribe it as hit the bell icon also. So this story is about Aman and his uncle. Aman asked something to his uncle about the Navy, Indian Navy. At the same time, his uncle also answers to him. Okay, so let's begin. So before enter to this chapter, let me tell you some awards like Paramveer Chakra, Ashoka Chakra, Veer Chakra, and Kriti Chakra, Vayu Sena Medal, or Nausena Medal. So all these awards, you have to know that. So for what purpose it is giving to the persons. So let me read you and translate you that in Hindi so that you can understand it very clearly. Okay. So Aman was on a tenterhook since morning and found it difficult to concentrate on his lesson. He could not even enjoy the game of cricket that the senior boys played against the team of neighboring school and on hands down. अमन जो है सुबह से अपने दिमाग को कंसंट्रेशन में नहीं ला पा रहा था जब वो लेसन को पढ़ रहा था, और साथ ही साथ उसे खेलकूद के लिए भी कोई इच्छा नहीं हो रही थी, जबकि उसकी जो दूसरे जो उसके नेबर से वो अपना नेबरिंग स्कूल ग्राउंड में खेल रहे थे. He was longing to get home and talk to his uncle Vikrant, who was home on a short holiday. Uncle Vikrant served in the Indian Navy, and he always regarded Aman and his friends with the stories of his voyage and interesting experiences. Joyous anticipation of the stories that waited him gave wings to Aman's feet, and he rushed home as soon as the school was over. So Aman स्कूल में था, लेकिन उसका मन जो है उसका घर में था. पता है क्यों? क्योंकि उसका अंकल विक्रांत जो है वो घर पे आए हुए हैं, जो कि नेवी में नौकरी करते हैं, और वो अपने अंकल से नेवी के बारे में कुछ बात सुनने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए वो इच्छा जाहिर करता था. आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा शिप है. ओके, तो इंडिया में भी इस प्रकार एक शिप है जिसके ऊपर इस प्रकार से जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं,
और वहाँ से अपनी उड़ान भरते हैं और यहाँ पे आकर के उतरते हैं। तो इस प्रकार वो नेवी में उसके अंकल जो काम कर रहे थे, तो उनके साथ कुछ विशेष बातें करने के लिए, उनसे वॉयाज के स्टोरी सुनने के लिए, यानी समुद्री यात्रा जो है स्टोरी सुनने के लिए उसके दिल में बहुत सी बेचैन हो रही थी। और किसी न किसी तरह से जैसे स्कूल ख़त्म होता है वो बिल्कुल भागता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता है। अंकल विक्रांत was in the veranda sipping a cup of tea and chatting leisurely with a friend of his. When Aman reached his house, he smiled cheerfully at him and said, "Not playing football this evening?" Aman shook his head vehemently. तो जैसे अमन घर पे पहुंचता है, घर पे पहुंचने के बाद देखता है कि उसका जो अंकल है वो बस एक कप चाय लिए हुए और बरंडा में बैठे हुए हैं और अपने किसी दोस्त के साथ वो बातें कर रहे हैं। जैसे अमन घर पे आकर के पहुंचता है तो वो बड़े एक अच्छे स्माइल भी उनकी ओर देते हैं और साथ ही साथ उसको यही कहता है, नॉट प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग। तो अमन को यही कहते हैं कि क्या आज तुम्हें फुटबॉल नहीं खेलना है? तो बस थोड़े से अनिच्छापूर्वक वो अपने सिर को हिला देता है। नॉट यू प्रॉमिस्ड मी दैट यू वुड टेल मी ऑल अबाउट योर वर्क एंड यू कैंट बैक आउट नाउ। अमन कहता है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया है और आप अपने नौकरी के बारे में, आप जो कार्य करते हैं उस कार्य के बारे में मुझे बताएंगे, मुझे सुनाएंगे, पर आप पीछे नहीं हटेंगे। I don't mean to, said Uncle Vikrant. My friend Naren, pointing to his friend who also worked with me and is posted on the same ship, and I will answer all your questions and tell you all that you wish to know. तो अंकल कहते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई, आप जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। मेरा दोस्त नारायण भी मेरे साथ, और मैं जिस जगह में मतलब मुझे पोस्ट मिला है वही सेम जगह पे वो भी काम करता है। तो जो तुम्हें पूछना है तुम पूछ सकते हो, ऐसा कोई हिचकिचाने वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है। तो फिर अब बातचीत आगे बढ़ता है ना। The main responsibility of Navy is to protect the coastline so that enemies don't target us, isn't it? asked Aman. तो अमन यहाँ पे अपने आप इस प्रकार कहता है कि नेवी का जो मेन पर्पस होता है, क्या होता है कि अपना शत्रु किसी भी तरह से समुद्री मार्ग में होते हुए ना आए, है ना, और इसको रोकना ही उनका सबसे बड़ा काम होता है। तो अंकल नोडेड एंड सेड, यू नो अमन, आवर कंट्री हैज अबाउंडेंट ओशनिक वेल्थ और कंप्रेसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड टेरिटरीज। फिर अमन को कहा कि हमारा जो कंट्री है बहुत से धन से भरा हुआ है और लगभग कितने सारे आइलैंड हमारा कंट्री में और है, जो आइलैंड टेरिटरीज के रूप में उसको हम जानते हैं। तब क्या होता है कि अब यहाँ पे फिर से उसको यही कहा जाता, ओवर 100,000 शिप पास थ्रू द इंटरनेशनल शिपिंग लाइन्स of this region every year. About 1,000 million ton of oil is shipped annually around the world of the oil wells of the Persian Gulf through the water close to India. तो यहाँ पे ऐसा होता है लगभग
100,000 शिप्स जो है हर साल जो इंटरनेशनल शिपिंग लेन के थ्रू हर साल यहाँ पे पास करता है, और साथ ही साथ 1000 मिलियन टन ऑयल जो है वो गल्फ से इसे समुद्री मार्ग से बिल्कुल इंडिया के नज़दीक लाया जाता है। एंड नॉट ओनली दैट सेड अंकल्स फ्रेंड नरेन। अब अंकल कह ही रहे थे, कहते कहते अभी नरेन भी कहने लगा। नरेन क्या कह रहा है? नरेन कह रहे कि फिशिंग, सी फूड इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस फ्रॉम offshore oil rigs, salt, pearls, minerals from the seabed, and tidal electricity generation are other benefits that we derive from the sea and ocean. सी एंड ओशन से हमें और क्या क्या चीज़ मिलता है? जो मतलब कीमती पत्थर जो होता है वो है, साल्ट है, मिनरल्स है ना, और साथ ही साथ सी फूड है, ऑयल, गैस, ये सब चीज़ हमको कहाँ से मिलता है? ये समुद्र से ही मिलता है। तो इसलिए हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपने सीमा को सुरक्षा करें। सो वी आर entrusted with the responsibility of protecting not only the coastline but also the plentiful natural resource that we have. Besides this, the Indian Navy is also catalyst for peace and tranquility and stability. It also provides secure to smaller nations when these nations are in need of humanitarian assistance and relief from natural calamities such as tsunami, flood and cyclone. तो नेवी के बारे में यहाँ पे फिर से वही कहते हैं कि केवल समुद्री मार्ग को ही रक्षा करना नेवी का काम नहीं है, बल्कि जिस समय नेचुरल कलामिटीज आता है, जैसे कि फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, या तो फिर कोई और कुछ हो गया, ऐसे समय पर भी नेवी क्या करता है? लोगों को मदद करने के लिए सामने आता है। और साथ साथ उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि प्रकृति यानी ये जो समुद्र जो है वो उनके लिए है, और उसे क्या करना है? उसको उनको बचा करके रखना है, ये उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। द इंडियन नेवी इज फॉर्माइडेबल फोर्स टुडे, सेड अंकल विक्रांत प्राउडली। आजकल इंडियन आर्मी जो है, नेवी जो है, वो रियलिटी में फॉर्माइडेबल है। फॉर्माइडेबल का मतलब है ना किसी को डरता है, ना किसी से हारता है। सो वी हैव 141 शिप्स एंड सबमरीन एंड मोर देन 200 एयरक्राफ्ट आवर्स इन द 5th लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड नाउ। तो यहाँ पे अंकल विक्रांत कहते हैं कि हमारे जो नेवी है वो बहुत विशाल हो चुका है इस समय, और 141 शिप्स हमारा पास है, और सबमरीन से, और 200 एयरक्राफ्ट से, और साथ ही साथ एक बहुत हम अभी 5th लार्जेस्ट नेवी, वर्ल्ड में जितने भी नेवी होते हैं उनमें से 5th पोजीशन पे हम पहुंच चुके हैं। I admire your uniform, said Aman with a shy smile. I think you really looked very handsome in it. तो अमन कहता है कि आप जब यूनिफॉर्म पहनते हो, आपका जो नेवी ब्लू का, तब रियलिटी में आप बहुत ही स्मार्ट दिखते हो। थैंक यू, said uncle and Naren together. But do you know what our motto is? It is Shano Varuna of Sanskrit saying, which means
May the Lord of ocean be auspicious unto us. तो इस समय अंकल कहता है कि तुम्हें पता है हम किस बात को लेकर के मतलब हम क्या करते हैं कि हमारा जो मेन कर्तव्य क्या है, हम क्यों, हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य है कि जो गॉडेस यानी देवी होती है समुद्र की, उसको खुश करना। We do need the protection of the sea, said Uncle Vikrant on a more serious note. One of our most daring and courageous operation took place on 3 and 4th December 1971 during Indo-Pak War. Many of Pakistani ships were destroyed in the Karachi harbor. फिर बड़े बहादुरी के साथ वो कहते हैं, विक्रांत अंकल कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है, हमारा जो मतलब एरिया है, समुद्री एरिया है, उसको सुरक्षा देना। और साथ ही साथ वो 3 और 4 दिसंबर 1971 की बात को भी याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से और इंडो और पाक का जो युद्ध हुआ उस दरमियान बहुत से जो जहाज थे उसको भारतीय नेवी ने क्या किया, कराची का हार्बर में संपूर्ण रूप से क्या कर दिया, उसको विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया। It is that reason why 4th December is celebrated every year as Navy Day. और यही कारण था जिसके चलते कि हमारा जो भारत में नेवी डे के रूप में 4th दिसंबर को सेलिब्रेशन किया जाता है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, अभी सेकंड पार्ट हम फिर पढ़ेंगे। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।